हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी जो हम लिपिन कॉर्ड से कर रहे हैं। पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स का एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव टू बिगिन विद द टॉपिक ऑफ ड्रग क्लियरेंस। अब ये जो क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली आइडिया ये है कि देखें, जब आप ड्रग इनटेक करते हैं वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है, अल्टीमेटली उसके इनएक्टिव प्रोडक्ट्स या इन सम इंस्टेंसेस वो ड्रग इटसेल्फ बॉडी से निकलती है। Now there are various mechanisms by which the drug is released out of the body, yeah, excreted out of the body. The two main primary organs are kidney and the other one is your beautiful liver. So these are the two primary organs. Liver में तो particularly metabolism होता है. When the drug enters in here, it changes the drug into various different inactive metabolites. और फिर बाइल के जरिए GI ट्रैक में भी सिक्रीशन होती है, ब्लड में जाके किडनी के जरिए भी. So these are the two primary organs जिनके जरिए बॉडी से ड्रग या उनके मेटाबोलाइज प्रोडक्ट्स बॉडी से बाहर निकलते हैं. सो इसके अलावा और भी जगहों से, फॉर एग्जांपल गैस एनेस्थेटिक्स अगर यूज हो रहे हैं तो वो लंग से निकलते हैं इन द एक्सपायर्ड एयर. इसके अलावा देयर आर सम अदर लैक्रीमल, फॉर एग्जांपल नेजल सिक्रीशन. सो देयर आर डिफरेंट रूट्स जहां से ड्रग बॉडी से एलिमिनेट होती है, बट किडनी एंड लिवर आर द मेन वंस. ओके, सो वंस अ ड्रग एंटर्स द बॉडी, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बिगिंस. यानी वो बॉडी में मेटाबोलाइज भी होती है और निकलना भी शुरू हो जाती है. द थ्री मेजर राउट्स ऑफ एलिमिनेशन आर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इन द लिवर, biliary elimination. Biliary elimination is via the gallbladder, and then the urinary excretion, which is the kidney. Okay, note that elimination is irreversible removal of the drug from the body. It involves the drug metabolism and its excretion. So ये वर्ड जब कभी आएगा elimination का, it is composed of two different components. पहला, there will be metabolism of the drug such as in the liver. So the drug will enter into the liver and there will be metabolism and it will be converted to something else. And the other component of elimination is excretion. ज़ाहिर ड्रग मेटाबोलाइज होकर बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रही, इट इज ऑल्सो बीइंग एक्सक्रीटेड. ओके, सो ये दोनों प्रोसेस एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म को मिलाकर कहलाते हैं एलिमिनेशन. एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ द इंटेक्ट ड्रग. सिर्फ अगर वर्ड एक्सक्रीशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ड्रग बगैर मेटाबॉलिज्म के बॉडी से बाहर निकल रही है. It's the removal of the intact drug from the body. Together, these elimination processes decrease the plasma concentration exponentially. So, obviously, अगर body से drug excrete हो रही है या eliminate हो रही है, excrete हो रही है मतलब without metabolism body से निकल रही है, और eliminate हो रही है का मतलब ये है कि पहले वो metabolize भी हो रही है और फिर excrete भी हो रही है. तो इन दोनों ही प्रोसेस में चूंकि ड्रग बॉडी से निकल रही है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी. सो फॉर एग्जांपल, देयर इज अ ग्राफ एंड दिस इज द टाइम लाइन 0 एंड दिस इज 1 hour and this is 2 hour and this is 3 hours. So that's the timeline in hours, and that's, say for example, the drug concentration. So here we have the drug concentration at time 0. Say for example, I enter into my body 100 milligrams of the drug. Suppose at 1 hour it becomes 50% of 100 milligrams, so it will reach to a value of 50 now. So at 1 hour, this was the point at time 0 hour. This 50 is the point at 1 hour because that's the half life. The drug becomes half exactly in 1 hour. And then in the second hour, it will be half of the 50, which would mean 25. Half of the 50 would be something like here. And in the next hour, it will be 12.25 or something. So it will go down there. So if you plot something like this, this is the exponential decrease in the amount of drug in the body over the period of time. ये क्यों कम होता जा रहा है? Because the drug is being eliminated. वो body से निकल रही है. And this is known as exponential clearance. Exponential clearance का मतलब ये है कि the half-life is after every particular amount of time, the drug is being converted into half of its original amount. 100 से 50, फिर 50 का half 25 in the second hour, 25 का half 12 point something in the third hour, that sort of thing. This is called exponential. And अभी थोड़ी देर में आपको ये भी बताऊंगा, this is also called the first order kinetic. We'll discuss about it. Now, that is the constant fraction of the drug is eliminated at a given unit of time. Metabolism results in products which increase the polarity, which allows the drug to be eliminated. So, metabolism जो liver में हो रही है, sometimes it makes the drug more excretable. यानी अगर एक ड्रग है, ड्रग ए, ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं हो पा रही, बट वंस इट इज मेटाबोलाइज्ड टू समथिंग एल्स, उसकी पोलैरिटी बढ़ा दी जाती है एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड, राइट. अच्छा, एक टर्म यूज हम करते हैं क्लियरेंस का. What does clearance means? Clearance basically estimate the volume of the blood from which the drug is cleared per unit time. So it's nothing but this simple formula
जहां हम बात कर रहे हैं एक्चुअली अगर सिंपलेस्ट जबान में मैं आपको बताऊं तो क्लियरेंस का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ द प्लाज्मा से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग क्लियर हो रहा है. सो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ड्रग की और कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा उसे, यानी इफ आई हैव फॉर एग्जांपल 2 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा, इस 2 लीटर ऑफ प्लाज्मा से मैं कितनी ड्रग बॉडी से निकाल रहा हूं, दैट विल बी नोन एज क्लियरेंस. सो द अमाउंट ऑफ ड्रग which is being cleared from the plasma volume per unit time. That's the concept. Formula wise अगर देखें, so there are two almost constant values. One is 0.7, 0.69 or 0.7 and the other one is volume of distribution, which also remains constant for various drugs. You know, it's not variable for a single drug. So if you are taking one particular drug, it will be constant. But the changing thing would obviously be the half-life. And an important thing to understand here in this particular equation is you obviously don't have to calculate the clearances in the exam, but the broader concept is कि half life और clearance का क्या relation है. देखें, clearance is equal to 0.7 times volume of distribution divided by the half life. That's the formula. ये formula मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाफ लाइफ और क्लियरेंस का आपस में रिलेशन क्या है, सो हाफ लाइफ इज इन द डिनोमिनेटर, क्लियरेंस इज इन द न्यूमरेटर ऑन द ऑपोजिट साइड, सो दे आर इनवर्सली रिलेटेड. सो क्लियरेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द हाफ लाइफ, व्हिच मींस व्हाट, अगर किसी, एंड दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल स्टफ, आपको समझ में आएगी बात, अगर ड्रग की हाफ लाइफ ज्यादा है, हाफ लाइफ ज्यादा है का मतलब यह है कि वो ज्यादा टाइम लेगा to become half of its original concentration. So for example, I have a drug A, and then I have another drug called drug B, और इनके ग्राफ्स में बनाता हूँ. So drug A for example, ये भी मैंने स्टार्ट में 100 मिलीग्राम दी और drug B भी मैंने स्टार्ट में 100 मिलीग्राम दी. Drug A 50 मिलीग्राम तक पहुंचती है, यानी हाफ हो जाती है in 1 hour. लेकिन ड्रग बी जो है वो 50 मिलीग्राम तक पहुंचती है, से फॉर एग्जांपल इन 3 hours. सो द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग बी इज 3 hour, ज्यादा है, एंड द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग ए इज 1 hour. इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव नाउ अ ड्रग विद मोर हाफ लाइफ एंड वी हैव नाउ अ ड्रग विद लेस हाफ लाइफ. तो अगर हाफ लाइफ ज्यादा है तो इसको दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि वो ज्यादा देर तक बॉडी में रहेगी, वो ज्यादा देर तक प्लाज्मा में रहेगी, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि उसकी क्लियरेंस यानी उसको निकालने की कैपेसिटी बॉडी से कम होगी. सो इफ वी हैव मोर हाफ लाइफ देन द क्लियरेंस इज लेस. अब इसको आप कंपेयर करें इस ड्रग के साथ जिसकी हाफ लाइफ कम है, हाफ लाइफ कम होगी तो इसका मतलब ये है कि वो ड्रग जल्दी जल्दी एलिमिनेट होगी बॉडी से, और अगर जल्दी जल्दी एलिमिनेट होगी तो वी वुड से कि उसकी क्लियरेंस ज्यादा है. सो इट्स अ सिंपल इनवर्स रिलेशन. हाफ लाइफ ज्यादा है तो क्लियरेंस कम है, हाफ लाइफ कम है तो क्लियरेंस ज्यादा है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, now this is a super important concept of drug kinetics, first order and zero order, and this is what we have to understand. और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखें, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज एक्चुअली फॉलोड बाय मोस्ट ऑफ द ड्रग्स वी टेक. सो दैट्स द गुड न्यूज that many of the drugs that we use for any disorder obey the first order kinetics. है क्या, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. And then we have the zero order kinetics. जो zero order kinetics है, that is followed by जिसमें आपको specific drugs actually याद रखनी है. And I would say कि अगर ये 3 drugs आप याद रख लें, then you are good for the exams. और वो 3 drugs हैं aspirin, ethanol and phenytoin. तो ये 3 drugs हैं which follow the zero order kinetics, and most of the drugs follow the first order kinetics. अब first order kinetics है क्या? The first order kinetics, यहाँ लिखा भी है, देखिए, the most of the reactions obey this first order kinetics. In most clinical situations, the concentration of the drug, which is represented by bracket C, is much less than the Michaelis constant. And ये मुश्किल करके बताया, मैं इसको भी आसान करके आपको समझाता हूँ. That is the rate of drug metabolism and elimination is directly proportional to the concentration of the free drug. And the first order kinetic is observed by explanation कि जितनी ज़्यादा ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा उस ड्रग का एलिमिनेशन होगा, that sort of thing. This means that a constant fraction of drug is metabolized per unit time.
first order kinetic is also referred to as linear kinetic. अब इस सारी स्टोरी को आपने याद ऐसे रखना है कि सपोज वी हैव अ टैंक हियर और उसमें यहाँ पे एक होल है एंड वी हैव दिस मच लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक, और ये ज़ाहिर है इसमें से बाहर आएगा, लेकिन अगर हम वाटर का अमाउंट बढ़ा देते हैं सो यहाँ से ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा, मजीद बढ़ा देते हैं सो पॉसिबल है मजीद प्रेशर से पानी निकले. सो यू सी द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग. जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, या इस केस में जितना ज़्यादा ड्रग, अगर हम इस एग्जाम्पल को इससे होमोलॉजी एग्जाम्पल के तौर पर लें तो जितना ज़्यादा ड्रग होगा एलिमिनेशन उतना फास्टर होगा, उतना तेज होगा. सो इसको ग्राफ पे अगर हम एक्सट्रापोलेट करें, सो if this for example is the elimination portfolio of the drug and this for example is the concentration of the drug, so if the concentration is more, the elimination is more, and it leads to a linear curve between the concentration of the drug and the elimination. This is called first order kinetic. You increase the amount of the drug and the elimination also increases because there is more drug available, more of this is excreted. Okay, now this is absolutely in contrast with the concept of zero order kinetics. इस diagram पे भी यहाँ पे दिखाया हुआ है कि what's happening is the first order kinetic. You increase the dose of the drug here and the rate of metabolism and obviously elimination increases. So that's a linear curve. It's increasing with the dose of the drug. जीरो ऑर्डर किनेटिक्स में ऐसा नहीं है. और इसकी एग्जांपल सपोज एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, एक बड़ा रोड था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ काम हो रहा है तो यहाँ पर ब्लॉक्स लगा के और इस तरह करके गवर्नमेंट ने ये रोड बंद कर दिया है साइड से, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है. देयर आर पीपल वर्किंग एट द साइड्स ऑफ द रोड, और बीच में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी है कि एक ही गाड़ी यहाँ से गुजर सकती है. देयर इज ओनली पैसेज फॉर वन सिंगल कार. अब पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे 10 गाड़ियां मौजूद हैं तो भी यहाँ से एक ही गाड़ी गुजर सकती है. यहाँ पे अगर 20 गाड़ियां मौजूद हैं तो भी एक ही गाड़ी गुजर सकती है. सो द रेट ऑफ एलिमिनेशन इज कांस्टेंट. सो इफ रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग इज कांस्टेंट, then this is known as zero order kinetic. So zero order kinetic में जो metabolism और rate of elimination है, it always remains constant over the period of time. And there are only a few drugs which follow this. नाम उनके मैंने आपको already बता दिए हैं. And because the elimination does not follow with the concentration of the drug, आप concentration जितनी मर्जी बढ़ा दें, यहाँ 100 गाड़ियों की लाइन लगी हो, आगे रास्ता एक ही गाड़ी के निकलने का है तो एक ही गाड़ी निकलेगी एक वक्त में. Therefore, it is not a linear curve, just like what we discussed in here. Okay, so ये first order और zero order का concept बड़े important है भाई, याद रखने. Now, reactions of drug metabolism. The kidneys cannot efficiently excrete lipophilic drugs that readily cross the membranes and are reabsorbed in the distal convoluted tubule. Therefore, lipid-soluble agents are first metabolized into more hydrophilic. यानी अगर किडनी से किसी चीज़ को आपने एक्सक्रीट करवाना है और वो लाइपोफिलिक है तो मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो किडनी के जरिए निकलेगी और फिर दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगी. बिकॉज वो लिपिड सॉल्यूबल है तो वो आपके नेफ्रॉन्स में दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगी. सो इट विल नॉट वर्क. एंड इफ़ यू हैव टू एलिमिनेट दीज ड्रग्स, it will have to be polarized. It will have to be made hydrophilic ताकि वो किडनी से रिलीज हो सके. Okay, so ये एक जनरल स्कीम है. Therefore, the lipid soluble agents are first metabolized into more polar, यानी hydrophilic substances in the liver via two general sets of reaction called phase 1 and phase 2 reaction. यानी lipid soluble drug को किस तरह water soluble drug बनाया जाता है, that happens in two phases. The first phase is a reaction which converts the lipophilic drug into more polar molecule by introducing a polar functional group such as hydroxyline or amine group. Phase 1 reaction usually involve reduction, oxidation, hydrolysis reaction, and phase 1 metabolism may increase, decrease or have no effect on the pharmacologic activity. So there is a drug A, इस पर further groups add कर दिए जाते हैं. They can be hydroxyl group, they can be amino group, etc, etc, etc. That's called phase 1. And then once this happens, then the phase 2 reaction happens. Or phase 2 reaction में the major thing that you have to remember is conjugation happens. मैं बाकी details अभी phase 1 की बता रहा हूँ, but first let's have an idea what is phase 1 and phase 2. If the metabolite from phase 1 is sufficiently polar, it can be excretely directed by the kidneys. However, many phase 1 metabolites are still too lipophilic. यानी पहले उनको lipid soluble से थोड़ा water soluble बनाया गया और phase 2 में further water soluble बनाया जाता है. So that second reaction is called phase 2 reaction. And this is a conjugation reaction with an endogenous substance such as glucuronic acid, sulfuric acid, acetic acid. तो ये उनको further water soluble बनाते हैं.
A notable exception is morphine 6-glucuronide, which is more potent than morphine. So sometimes drug का जो metabolic product बनता है after phase 1 or phase 2 reaction, it becomes more potent than the original drug. This is also happens. की example यहाँ पे दी हुई है. Glucuronidation is the most common and the most important conjugation reaction. This is not important relevant here. The highly polar drug conjugates are then excreted by the kidney or in the bile. So what we are doing in the whole process of phase 1 and phase 2 reaction, that we are making the lipid soluble compounds into more water soluble structures. Okay, अब phase 1 की कुछ further details हैं. It utilizes a specific system which is known as P450 system. The phase 1 reaction most frequently involved in drug metabolism are catalyzed by a particular system in the body, very famous, cytochrome P450. It's an important system for metabolism for many endogenous compounds such as steroids, lipids, and also the exogenous compounds such as drugs. It is also important, and there is example, exogenous substances के लिए drugs, carcinogen, ये सब P450 system में utilize होते हैं. The cytochrome P450 system is a superfamily of heme-containing isozymes located in most cells but primarily in the liver and GI tract. Because आपकी ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म का मेन हब क्या है? लिवर है. तो लिवर में ये साइटोक्रोम P450 सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल होता है और ये ज़्यादातर ड्रग्स को हैंडल करता है बाय डूइंग द फेज 1 रिएक्शन. अच्छा, ये अब नोमेनक्लेचर पे कुछ बात की है. द फैमिली इज इंडिकेटेड बाय द अरेबिक नंबर फॉलोड बाय द CYP. CYP is for cytochrome P. It can be 450, it can be 3A, it can be 3A4. They all have different specific functions. Okay, जब हम different drugs पढ़ेंगे तो इनका different discussion आएगा, and that is kind of showing the contribution of the cytochrome P450 isoforms to various drug biotics. The most important one is this isoform, and then you have the C8/9 and 2D6. The next one is, so if you want to remember, that's a good deal of diagram. Specificity से क्या मतलब है? Because there are many different genes that encode multiple enzymes, there are many different P450 isoforms, जो अभी ऊपर डायग्राम में दिखाया भी मैंने आपको. These enzymes have a capacity to modify the large number of structurally diverse substances. In addition, an individual drug may be a substrate for more than one isozyme. 4 isozymes, cytochrome P3A4/5, 2D6, and 2C8/9, and A1A2 are responsible for vast majority of P450 reactions. तो ये isozymes आपने याद रखने हैं और आप यहाँ देख भी रहे हैं कि they are the most common ones. So सबसे बड़ा ये है, then ये. So these 4 are forming the bulk of the major isozymes. Considerable amounts of cytochrome P3A4 are found in the intestinal mucosa, accounting for first part metabolism. Okay, that's not something that we can now not understand. तो इस हेडिंग में आपको ये बताया कि P450 जो सिस्टम है, एंजाइम का सिस्टम, वो कई तरह का होता है. मेजर ये 4 हैं. ओके, नाउ द जेनेरिक वेरिएबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. P450 एंजाइम exhibit considerable generic variability amongst individual. यानी मुझ में P450 सिस्टम हो सकता है अलग हो, आप में ये P450 सिस्टम अलग हो, which means कि हम सब में ड्रग को मेटाबोलाइज करने की कैपेसिटी डिफरेंट है. हो सकता है आप ड्रग को ज़्यादा मेटाबोलाइज कर दें, जल्दी एलिमिनेट कर दें. मैं ड्रग को कम मेटाबोलाइज करूं, उसे देर से एलिमिनेट करूं. तो अगर मैं देर से एलिमिनेट कर रहा हूं तो मुझ में उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी. इसका मतलब ये है कि मुझे कम डोज चाहिए. सो ऑल द डोजिंग इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज द जेनेरिक प्रोफाइल ऑफ द साइटोक्रोम P450 सिस्टम. इससे हर चीज़ अफेक्ट होगी. आप सोचें ना कि सपोज दिस इज अ पर्सन और इस पर्सन में साइटोक्रोम P450 सिस्टम इज वर्किंग सुपर तेज काम कर रहा है. तो जैसे ही बंदा ड्रग लेगा वो उसको फौरन से मेटाबोलाइज कर देगा. तो फौरन से एलिमिनेट हो जाएगी. तो इसका मतलब हाई क्लियरेंस है तो लो हाफ लाइफ है. हाफ लाइफ अगर कम है तो इसका मतलब वो ड्रग बॉडी में थोड़ी देर के लिए होगी. मुझे इफेक्ट पाने के लिए उस ड्रग का डोज बढ़ाना पड़ेगा. अब इस पूरी सिनेरियो को आप उल्टा कर दें. सपोज ये बंदा जो ड्रग ले रहा है उसमें साइटोक्रोम P450 की जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म ऐसी है कि वो हल्का काम कर रहा है. दैट सिस्टम इज नॉट वर्किंग वेरी फास्ट. वो हल्का काम कर रहा है तो ड्रग मेटाबोलाइज कम होगी तो कम एलिमिनेट होगी तो क्लियरेंस कम होगी तो ड्रग बॉडी में रहेगी. हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो 2-3 चीज़ें.
एक तो मुझे उसका डोज यहाँ कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो बॉडी में मौजूद है, दूसरा इस ड्रग से अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स भी भर भर के होंगे क्योंकि ये ड्रग एलिमिनेट नहीं हो रही. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ. ओके, then there are some inducers which make the cytochrome P450 system faster. So that is also an important interaction. Certain drugs, for example phenobarbital, rifampin, tuberculosis में यूज होती है, carbamazepine, are capable of inducing this system. तो जब ये इसको इंड्यूस करेंगे तो ड्रग तेजी से मेटाबोलाइज होगी, बॉडी से तेजी से निकलेगी. यही सारी कहानी रिपीट होगी जो मैंने अभी आपको बताई. ओके, नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट टेबल. यू अभी भी याद कर लें या जब ये ड्रग्स हम पढ़ेंगे तब याद करेंगे कि कौन सा साइटोक्रोम P450 सिस्टम किस ड्रग से इंड्यूस होता है, किस ड्रग पे वो काम करता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. और फिर देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच कैन इनहिबिट द साइटोक्रोम P450 सच एज कीटोकोनाजोल. And numerous drugs inhibit one or more cytochrome P450 dependent biotransformation pathway. For example, omeprazole is a potent inhibitor of these enzymes involved in warfarin metabolism. So, अगर ये inhibitors और inducers, इनकी importance ये है कि if they are taken with a drug, so for example, a person is taking ketoconazole, okay, and this ketoconazole is going to inhibit the cytochrome P450 system. इसको inhibit कर रहा है. अच्छा, यही cytochrome P450 system जो है, it metabolizes warfarin. अब अगर आप कीटोकेनाजोल और वारफेरिन एक साथ लेते हैं, वारफेरिन को मेटाबोलाइज करने के लिए ये साइटोक्रोम P450 सिस्टम चाहिए, लेकिन अब आपने कीटोकेनाजोल ले लिया है तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा. वारफेरिन पड़ी रहेगी बॉडी में, मेटाबोलाइज ही नहीं होगी, एलिमिनेट ही नहीं होगी, हाफ लाइफ बढ़ जाएगा, इसका साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे. सो इस पेशेंट में हमें वारफेरिन का डोज कम करना पड़ेगा बिकॉज ये कीटोकेनाजोल के साथ ले रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे फार्माकोलॉजी में ये बार बार रिपीट होगा. ओके, सो फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस चेंज द design of the drug elimination. बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉडी से ड्रग किस तरह निकल रही है. अब हम किडनी की स्पेसिफिकली बात करेंगे, क्लियरेंस बाय द किडनी, कि किडनी किस तरह से ड्रग को बॉडी से निकालती है. अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है कि अगर किडनी से ड्रग को क्लियर होना है तो इट हैज टू बी वाटर सॉल्युबल, इट हैज टू बी पोलर. लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स एलिमिनेट नहीं होंगी फ्रॉम द किडनी. ओके, दे विल रादर बी रीअब्सॉर्ब्ड. रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द बॉडी अकर्स वाया नंबर ऑफ रूट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 2 रूट्स मैंने आपको बताए, लिवर एंड द किडनी. और अगर इसके पूरे प्रोफाइल को देखें, सो दिस हैपेंस विद द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इस डायग्राम पे इसको समराइज करते हैं. द ड्रग विच इज फ्री एंड नॉट बाउंड टू द एल्बुमिन is filtered into the tubule, and it is also secreted actively into the proximal convoluted tubule. And if the drug is lipid soluble, it can be reabsorbed back into the blood. But if it is polar enough, यानी वो drug phase 1 और phase 2 के reaction successfully करके आ रही है, so it will then be eliminated. So the ionized portion of the drug, lipid insoluble portion of the drug will go into the urine and will be eliminated from the body. So the first step is the GFR, which is the filtration of the drug, which is free and not bound to the albumin. Okay? And after this there is tubular secretion, इस diagram पे जिस तरह मैंने आपको बताया. And if there is tubular reabsorption of the drug, you have to consider कि जो lipid soluble part है drug का वो reabsorb back हो जाएगा. Okay, so the drug if is uncharged may diffuse out of the nephric lumen, नेफ्रॉन से वापस चला जाएगा back into the circulation. Many drugs show this phenomena. हर वो ड्रग जो ठीक से phase 1 और phase 2 के रिएक्शन से मेटाबोलाइज नहीं हुई, जो कि अभी भी लिपिड soluble है, it will cross the membranes. Okay, sometimes also manipulating the urine pH to increase the fraction of the ionized drug is done. So for example, there are some drugs such as weak acids, they can be eliminated by alkalinization of the urine. So weak acids, alkalinization of the urine and their elimination increases, and vice versa. For example, a patient presenting with phenobarbital, which is a weak acid overdose, can be given bicarbonate, because by bicarbonate you are actually alkalinizing the urine, and by alkalinizing the urine you increase the excretion of phenobarbital क्योंकि वो ionized form में रहता है in the alkaline environment. So you can change the pH to increase the water solubility or ionic presentation of the drug. Being ionized means being more water soluble, that sort of thing. So concept ये है कि अगर lipid soluble होगी drug तो absorb हो जाएगी वापस, और अगर water soluble है तो excrete out हो जाएगी into the urine. So that's the clearance via the kidney. There are other routes, मैंने आपको बताया इस वीडियो के स्टार्ट में कि lungs से भी ड्रग्स निकलती हैं, particularly gaseous anesthetics, बाइल में रिलीज होती हैं, ब्रेस्ट मिल्क में और भी secretions हैं, और इन सारे
क्लियरेंसेस को मिला दें तो बनता है एक टर्मिनोलॉजी जिसे कहते हैं टोटल बॉडी क्लियरेंस, विच इज द क्लियरेंस बाय लिवर प्लस क्लियरेंस बाय लिवर के साथ साथ रीनल क्लियरेंस, और जहां जहां से अदर देखें क्लियरेंस बाय एनी अदर रूट, इन सबको ऐड कर दें ऑब्वियसली देन यू गेट द टोटल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग. बट आई टोल्ड यू दैट बाय एंड लार्ज द मोस्ट कॉमन clearing agents of the drug are liver and kidney. These two are the major components जो drug elimination में drug clearance में help out करते हैं. ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देयर आर डिफरेंट क्लिनिकल सिचुएशंस जिससे ड्रग की हाफ लाइफ पे फर्क पड़ेगा. अब सपोज ये किडनी है और किडनी से एक ड्रग है जिसे एलिमिनेट होना है लेकिन किडनी खराब है, देयर इज क्रॉनिक रीनल फेलियर फॉर एग्जांपल. तो क्रॉनिक रीनल फेलियर में द ड्रग विल नॉट बी एलिमिनेटेड बिकॉज किडनी अपना काम ही नहीं कर रही. तो किडनी अगर काम नहीं करेगी, रीनल फेलियर है, तो द ड्रग विल accumulate in the body and the half life of the drug will increase. If I say the half life of the drug is increased, elimination of the drug will be decreased, so the clearance will be decreased as well, and this drug will then accumulate in the body. Same happens if there is problem with the liver. अगर liver में say for example hepatic fibrosis, hepatocellular carcinoma, cirrhosis, इन तमाम conditions में जो liver की metabolic capacity है वो ज़ाहिर कम हो जाती है, metabolism नहीं होता, drug metabolize नहीं होती, phase 1 reaction नहीं होगा, phase 2 reaction नहीं होगा, तो lipid soluble drug water soluble में convert नहीं होंगी, and obviously the concentration of the drug in the body will increase, half life will increase, clearance will decrease. So if there are patients with renal problem or the hepatic problems such as cirrhosis, there will be dose adjustments required because in patients में आपको डोज कम करना पड़ेगा दवाई का, because बहुत सारी दवाई ऑलरेडी बॉडी में मौजूद है क्योंकि किडनी से एलिमिनेट नहीं हो रही. सो दीज आर ऑल वेरी सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इनको ज़ाहिर समझने के लिए समझना तो होगा ना, एक दफ़ा दिमाग में चीज़ बिठानी होगी. तो इन लेक्चर्स के थ्रू आई एम ट्राइंग कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. देन द डिज़ाइन एंड द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डोजेज रेजीम. अभी तक हमने इस वीडियो में जितनी बातें डिस्कस की हैं उन सब को यू हैव टू कंसिडर when you are designing the dose for any patient. To initiate any drug therapy, the clinician must select the appropriate route of administration. जो इस चैप्टर का पहला पार्ट था, इस चैप्टर की जो हमने वीडियोस डिफरेंट बनाई उसमें पहली वीडियो थी फॉर द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्रेन के अंदर वो ड्रग चाहिए तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि आपको कौन सा रूट देना है. पेशेंट अगर बार बार वॉमिट कर रहा है तो परहैप्स ओरल रूट इज नॉट गुड. सो यू हैव टू डिसाइड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यू हैव टू डिसाइड द राइट डोज, जिसके लिए आपको पेशेंट का बॉडी वेट पता होना चाहिए, उसकी हाइट, सो BM, सारा उसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए. ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं कोई रीनल प्रॉब्लम, कोई लिवर प्रॉब्लम तो नहीं है. सो द राइट डोज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और कितने डोजिंग इंटरवल पे, यानी फॉर एग्जाम्पल ऑगमेंटिन दी जाती है 1 ग्राम BG, यानी 1 ग्राम आप दिन में 2 दफ़ा, सुबह दे दें शाम को दे दें. ऑगमेंटिन सम अदर डोजिंग फॉर्म में 3 दफ़ा भी दी जाती है. ऑगमेंटिन का इंजेक्शन भी होता है. सो किस इंटरवल के साथ आपने ड्रग देनी है, that is also very important, and this selection of a regime depends on various patient and drug factors. हर एक पे हर चीज काम नहीं करती. आपको पेशेंट देखना पड़ेगा, ड्रग देखनी पड़ेगी, पेशेंट की कंडीशन देखनी पड़ेगी, पेशेंट की किडनी खराब तो नहीं है, क्रॉनिक रीनल फेलियर तो नहीं है, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, उसके हिसाब से डोज एडजस्ट करना पड़ेगा. थेरेपी में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल डोज ऑफ अ ड्रग. फॉर एग्जांपल एक ही डोज दे दिया, सोते वक्त ले लो भाई. मोर कॉमनली drugs are continually administered either as intravenous infusion or oral fixed doses at particular time intervals. दिन में 3 दफ़ा ले लेना, हर 4 घंटे बाद ले लेना. तो ये जो कमांड होती है 3 दफ़ा दिन में, 4 दफ़ा दिन में, 2 दफ़ा दिन में, this is at regular intervals. Continuous or repeated administration results in accumulation of the drug until a steady state occurs. Steady state concentration is reached when the drug of elimination is equal to the drug. जितनी आप ड्रग ले रहे हो, दिन में 3 दफ़ा आप ड्रग ले रहे हो और ये आपको 5 दिन तक ड्रग लेनी है, तो ऑब्वियसली आफ्टर अ टाइम देयर विल बी अ स्टेडी स्टेट. यानी अगर आप ग्राफ देखें, लेट मी शो यू द ग्राफ. वेयर इज द नाइस ग्राफ टू शो दिस थिंग? दैट वन फॉर एग्जांपल. सो लुक हियर, दिस थिंग is you are taking a continuous infusion या oral drug ले रहे हैं, and that is with a timely interval. So 2 units of drug per day for say for example 5 days to you reach a very smooth and steady state concentration in this black graph. लेकिन अगर आप इसमें different hikes देखें, so blue graph for example shows injection of 1 unit of the drug twice daily. तो दिन में 2 दफ़ा ये ड्रग ली जा रही है, तो इसीलिए इसके डबल स्पाइक्स आ रहे हैं. अगर आप 2 यूनिट्स ले रहे हैं उसी ड्रग के एक दफ़ा दिन में, तो देखें स्पाइक ऊंचा हो गया, मच मोर हायर स्पाइक. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है और क्या पेशेंट की कंडीशन है. उस हिसाब से आप इंटरवल ऑफ द डोजिंग, अमाउंट ऑफ द डोजिंग, ये सब चीज़ें डिसाइड करते हो. ठीक है. सो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन का मतलब है कि आप इंट्रावेनस इन्फ्यूजन दे रहे हो
और कॉन्स्टेंटली बॉडी में एंटर कर, द ड्रग एंट्री इनटू द बॉडी इज कॉन्स्टेंट, मोस्ट ड्रग्स एग्जिबिट द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, ये बात हम कर चुके हैं. देयरफॉर द रेट ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन का क्या मतलब होगा फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन का, कि जितना ज्यादा आप ड्रग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना एलिमिनेशन बढ़ेगा. सो द रेट ऑफ एलिमिनेशन विल इंक्रीज. प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग फॉलोइंग कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन, फॉलोइंग इनिशिएशन ऑफ द आईवी, आपने पेशेंट की वेन में कैनुला डाल दिया और आप कंटिन्यूसली ड्रग दे रहे हैं. सो द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग विल राइज until a steady state has been reached, at which point the plasma concentration of the drug remains constant because बाकी सारी drug अब eliminate हो रही है. First order kinetics. Influence of the infusion rate on steady state concentration. Well, this is not a concept that I would like to discuss at the moment. I don't want to confuse you. ये जब हम particular drugs पढ़ेंगे एक एक करके आगे pharmacology में, तब इसका जिक्र आएगा. Now, time to reach the steady state concentration. The concentration of a drug rises from zero at the start of the infusion to ultimately a steady state concentration, CSS. The rate constant for attainment of steady state is the rate constant for the total body elimination of the drug. Complicated statement. मतलब ये है कि 50% of the steady state concentration of the drug is observed after the time elapsed since infusion. So T is equal to the half-life here. So, if we look at this particular graph, this explains what they are talking about. कि कब स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगी. सो द स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन का अचीवमेंट डिपेंड करता है कि आप कितना ड्रग का डोज यूज कर रहे हैं टू बिगिन विद, उसका टाइम इंटरवल क्या है. इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड से ग्राफ पर जो समझने की बात है वो ये कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ आईवी इन्फ्यूजन. अब ज़ाहिर है आप किसी बंदे को आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हो तो इट्स गोना कंटिन्यू फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और एक कंटिन्यूस इन्फ्यूजन है. ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा पेशेंट को कहा कि आप ये दवाई ले लें, उसके बाद फिर 2 घंटे का इंटरवल है, फिर दवाई ले लें. अगर इस तरह का सिचुएशन होती है तो देयर इज ऑसिलेशन इन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, यानी जब आप दवाई लेते हैं उसकी थोड़ी देर बाद द कॉन्सेंट्रेशन लेवल इन द प्लाज्मा इंक्रीज एंड देन डिक्रीज एंड देन इंक्रीज अगेन जब आप दोबारा दवाई लेते हैं. लेकिन कंटिन्यूस इन्फ्यूजन में दिस इज द स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन विच यू गेट. जहां आप ड्रग इन्फ्यूजन स्टॉप करेंगे वो ड्रग हाफ लाइफ को फॉलो करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज यहाँ एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी. सो देयर विल बी हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, यानी जहां आपने इन्फ्यूजन क्लोज की, यहाँ इन्फ्यूजन खत्म, बोतल खत्म, ड्रिप खत्म, तो अब 50% ऑफ द ड्रग बचेगी विच वी कॉल द फर्स्ट हाफ लाइफ. देन 50% का हाफ यानी 25%, दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हाफ लाइफ, एंड देन वी गॉट द थर्ड हाफ लाइफ. सो the point is कि for steady state concentration अगर IV infusion यूज कर रहे हैं तो you all the time have a steady state concentration, और अगर आप oral drugs ले रहे हैं तो it requires some time, यानी एटलीस्ट 3 हाफ लाइफ्स लगते हैं. आप सुबह में एक दवाई लेते हैं, वो ऑब्वियसली बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगी, फिर आप सेकंड डोज लेंगे, फिर थर्ड डोज लेंगे. सो आफ्टर ऑल दीज डोजेज, आफ्टर सम टाइम, योर बॉडी विल हैव अ गुड कॉन्सेंट्रेशन विच इज व्हाट वी कॉल द स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग्स टू वर्क सो दैट you have a balanced concentration of the drug in the plasma. अब there are different types of regime, जैसे कि fixed dose या fixed time regime की हम बात कर रहे हैं. Administration of the drug by fixed doses rather than continuous infusion. अब आप फिक्स डोज एट फिक्स टाइम, ज्यादातर दवाइयां हम ऐसे ही लेते हैं, यानी जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम कहते हैं ना कि ये आपने इतने ग्राम खानी है दिन में 3 दफा, सुबह दोपहर शाम, तो ये फिक्स डोज है और फिक्स टाइम है. हाउएवर द फिक्स्ड डोज ऑफ आईवी और ओरल मेडिकेशन गिव्स अ फिक्स्ड time interval result in time dependent fluctuation. Obviously there will be fluctuation, so when you take the drug the levels in the concentration of the plasma increase, when you don't it decrease and then increase again when you take it again. And sometimes we also use multiple IV injections. इस diagram में मैंने आपको ये बात बताई है कि if you are taking high dose of the drug at one time you get bigger peak, but if you get like multiple injections you get smaller peaks but more repetitive frequent peaks of the drug concentration. Effect of dosing with repeated administration at regular interval, yani subah dophar sham, the plasma concentration of the drug oscillates about a mean. So there is a mean concentration and it goes up and down and up and down. When you take the drug it's up, when you don't it's down, that sort of thing. Using smaller doses as shorter intervals reduces the amplitude of fluctuations in the drug concentration. However, the dosing frequency changes neither the magnitude of the steady state concentration nor the rate of achieving it. So many people used to think, and it's still true for some of the drugs, कि अगर मुझे 1 ग्राम
कोई ड्रग लेनी है डेली अपनी बॉडी में, सो मैं ये सुबह उठते ही 1 ग्राम ले लूँ, या मैं 500 मिलीग्राम सुबह में लूँ और 500 मिलीग्राम शाम में लूँ, या मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर दूँ 400, 400 एंड 200 में. सो पीपल यूज टू थिंक कि अगर 3 टाइम पे डिवाइड करेंगे तो अच्छा स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव होगा, बट आई मीन एक्सपेरिमेंट शो एंड डेटा रिवील कि एक्चुअली स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन पर इन इंटरवल्स के साथ कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. ऑल्दो ऑसिलेशंस पे फर्क पड़ता है, इनकी हाई पीक और लो पीक पे फर्क पड़ता है. Examples of achievement of a steady state using different dosing regimes, और यहाँ इन्होंने डायग्राम पे बताया. So for example, if you are using a single fixed dose, so there is obviously a single spike here and then the drug is being eliminated from the body. So single fixed dose, you give it as a single dose orally, it results in a single peak in the plasma concentration and then it continues to decline. However, if you do repeated oral administration of the drug, this leads to oscillation obviously. Okay, तो ये बात समझ में आने वाली है कि अगर आप एक ही डोज ले रहे हो तो it will get to the peak and then get out of the body, but आप ले रहे हो फिर और ले रहे हो फिर और ले रहे हो, not the same amount but increasing spikes are being seen because you are taking them again and again and again. So 500 milligram of a drug for example आपने एक दफ़ा ले लिया तो ये आपने पीक देख ली, लेकिन 500 ले रहे हैं, 3 घंटे के बाद फिर 500 ले रहे हैं, फिर 500 ले रहे हैं. So you see this increasing frequency of those curves. Okay, right. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द डोज. देखें बात यह है कि ये ऑप्टिमाइजेशन ना हर पेशेंट में अलग अलग है, तो यहाँ बड़ा जेनरिक से डिस्कशन है जब हम ड्रग्स अलग अलग देखेंगे और अलग अलग पेशेंट्स की बात करेंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ पर्सन विद रीनल फेलियर, तो इसमें यू हैव टू एडजस्ट द डोजेस बिकॉज क्लियरेंस अफेक्टेड होगी. इफ द पर्सन हैज हार्ट फेलियर फॉर एग्जांपल, उसमें ऑब्वियसली डोजिंग डिजाइन डिफरेंट होगा. लेकिन ये 2 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. वन इज नोन एज द मेंटेनेंस डोज, द अदर वन इज नोन एज द लोडिंग डोज. नाउ लोडिंग डोज हम पहले कर लेते हैं. समटाइम्स देयर इज rapid obtainment of desired plasma level which is required by the patient, such as अगर कोई एरिथमिया है या कोई serious life threatening infection है तो you need immediately a high dose. इसको हम आमतौर पे बोलस भी कहते हैं या it is also known as a loading dose. तो you actually administer a high loading dose, or sometimes you just don't do it, you give regular doses. तो आप देख रहे हैं कि जो spike है during particularly the first hour or first few hours, there is a high peak if you are giving the loading dose, and there is no high peak if you are not giving a loading dose. So later on after first half life इनके कर्व्स देखें एक जैसे हो गए, तो आप लोडिंग डोज दें या लोडिंग डोज ना दें, आगे चल के इनकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एक ही तरह का बिहेवियर शो करती है. लेकिन ऑब्वियसली अगर बोलस देंगे, हाई डोज इनिशियली देंगे, तो उसकी पीक हाई होगी एंड दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय सम टाइम. सो दिस बेसिकली इज नोन एज द मेंटेनेंस डोज, और स्टार्ट में जो बोलस दिया है दैट इज नोन एज द लोडिंग डोज. एंड डोज एडजस्टमेंट का बार बार जिक्र आ रहा है. It basically means you have to see your patient, उस पेशेंट का वेट कितना है, उसमें फैट कंटेंट कितना है, उसके हिसाब से उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, क्लियरेंस कैसी है, किडनी की सिचुएशन क्या है, लिवर की सिचुएशन क्या है. ये सारे फैक्टर्स दे आर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन डिसाइडिंग द डोज ऑफ अ पर्सन. ओके, सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ कुछ इन्होंने डिजॉक्सिन की एग्जांपल दी है, बट आई एम गोना स्किप दैट बिकॉज ये हम तब करेंगे जब डिजॉक्सिन पढ़ेंगे. जनरल कॉन्सेप्ट्स आई थिंक इनफ फॉर दिस चैप्टर. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इट वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर. मेरे ख्याल है 4-5 वीडियोस पे मैंने ये चैप्टर बनाया है, तो इसको गौर से देखें, समझें, क्योंकि आगे पूरी फार्माकोलॉजी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करेगी. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. आपसे मुलाकात होगी फार्मा की अगली वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.